सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखे जाए, सपने वो नहीं है जो सोते हुए देखे जाए, सपने तो वो है जिन्हें पूरा किए बगैर नींद ना आए. A very warm welcome to all attendees and our guest, IAS Hitesh Kumar Meena, who have joined this webinar hosted by Disha, the Civil Services Society of Shivaji College. दिशा, जिसके नाम का ही उद्देश्य है छात्रों को सही दिशा दिखाकर उनका मार्गदर्शन करना, जिससे हर एक छात्र का सिविल सर्वेंट बनने का सपना सच हो. The first and the most important thing to crack any examination is proper guidance. And when we analyzed, the students are not clearing the UPSC examination just because of improper guidance, it made a way for the formation of Disha. And the new society was added in the Shivaji College, which not only worked to give proper guidance to all of its students, but also providing them the accurate study material. Disha is also running a YouTube channel where it posts very informative lectures regarding the syllabus of UPSC, so that not only Shivajians, but each and every student who dreams to be an IAS officer will get benefit from it. In this session, along with our chief guest, IAS Hitesh Kumar Meena, we are also having other committee members. Due to certain circumstances, our Professor Shiv Kumar Sahdev, who is our principal, is unable to join us, but we know that his blessings and support are always with us. Now I request our committee teacher, Ms. Sonal ma'am, to address our today's guest, IAS Hitesh Kumar Meena. Over to you, ma'am. Thank you, young lady. Well, my young friends, as I call my students often, होली की खुशबू माहौल में है, गर्मियां शुरू हो रही हैं और एग्जाम सर पर हैं और आपकी तमाम महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि पैंडेमिक खत्म हो गया है लगभग, डर जरूर है लेकिन सपने और उम्मीद जो हैं वो पैंडेमिक पर कब रुके हैं. कहते हैं ऊंचे गगन उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने का अरमा, पाना है मुझको नई मंजिल. Excuse me, ma'am. I think your mic is mute. Ma'am? Hello, am I audible? Yes, ma'am. Just 1 second. There is a technical glitch at my end. Can I get a couple of seconds? Okay, ma'am, sure. Sorry guys, disadvantages of technology. Where was I? I was just trying to, I don't know till what part did you hear, but I was trying to say that students के उम्मीद, उनकी ख्वाब, उनकी ख्वाहिशों की कोई मियादें नहीं होती है. और दिशा संगठन शिवाजी कॉलेज का एक छोटी सी कोशिश है जो छात्रों की पहल है और हम शिक्षक सलाहकार महज उनके ख्वाबों को पर देने की कोशिश करते हैं. इन्हीं कोशिशों की वजह है कि आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हितेश कुमार मीना जी, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में क्लियर किए हैं और आज हमारे छात्रों को वाकिफ कराना चाहते हैं कि इस परीक्षा में कैसे इसकी तैयारी की जाए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ना किया जाए. हितेश कुमार मीना जी, शिवाजी कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि छात्र आपकी इस लेक्चर से बहुत बेनिफिट करेंगे और आप उनका मार्गदर्शन सही रूप से करवा पाएंगे.
Over to you. Thank you so much, ma'am, for your delightful words. Now, without spending much time, I would like to briefly introduce our today's guest. As you all know, that today we are having IAS Hitesh Kumar Meena with us, currently serving at Sub-Divisional Officer in Ambala and Estate Officer in Government Land Excised Area, Ambala Cant. Despite coming from a civil engineering background, sir managed to crack the civil services examination in 2019. So, sir, I'm honored to invite you to talk about the today's topic, what is the correct way to start UPSC preparation? Good evening, all, and am I audible? Am I audible? Can yes, sir, you are. Go ahead. Okay. Good evening, all, and thank you so much for inviting me and welcoming me. Firstly, I will start with my little bit introduction. However, you have already done that. I am Hitesh Kumar, and basically I belong to Rajasthan originally, and regarding education, I've done my BTech from IIT BHU Varanasi in civil engineering. After that, I did my MTech from IIT Delhi in transportation engineering. Simultaneously, I prepared for CSE. So first, I got selected in Indian Forest Service with the civil engineering and Indian Forestry as an optional. And in the same year, I qualified CSE also with the civil engineering optional. Right now, I'm posted as an SDM Ambala City and with the additional charge of UHSBP Ambala. So I have received some questions from your side. I will address all of them, and after that, if any other questions will be there, then I will address all of them. Right. So first question is, which I have got: how to divide syllabus to work on the short-term goals effectively and answer writing approach. So yeah, and first you have to complete your basic syllabus. That is basic thing. After completing the basic syllabus, you should start answer writing practice. At the same time, you can start answer writing practice since day one also. But when you will start answer writing, there will be shortage of content, and you will think of कि मुझे क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास content का बड़ा issue रहेगा. तो on daily basis, you can write 1 or 2 answers unless your course is complete. After completion of the course, you should join some good test series regarding mains especially, because the main thing is like in especially in Delhi or some other competitive cities, everyone is joining some coaching, everybody is reading same resources. The major difference is attempting test series. So आप कोई भी अच्छी test series, whether whichever medium you are appearing in the CSE, like I personally joined the Vision IES coaching test series. I'm not promoting any coaching. You can join any coaching for the test series itself. And syllabus को divide up, मैं one by one जाऊंगा. First static and then current affair. Static के लिए आपकी जो बेसिक बुक्स हैं वो आपको कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स होती हैं, which I'm not going to tell. आपको एक बार सिलेबस हो जाने के बाद मेन फोकस रखना है वो टेस्ट सीरीज पे ही रखना है. एंड एक बार स्टैटिक आपका हो गया, करंट अफेयर के लिए मोस्टली मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो करी मैं बता सकता हूँ. डेली बेसिस पे इनिशियली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, बट उसमें 2-3 घंटे जाते थे और आउटपुट नहीं निकलता था. सो आई चूज IAS बाबा एंड इनसाइट ऑन इंडिया. 2 साइट हैं जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर का एनालिसिस डालते हैं प्रीलिम्स मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप वो पढ़ सकते हो. एट दी सेम टाइम एक कोई यूट्यूब चैनल चूज कर लो जो जिसका 10 से 15 मिनट में न्यूज़पेपर का एनालिसिस देते हैं, वो देख सकते हैं. तो मैं आधे घंटे जैसे इनसाइट ऑन इंडिया का प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से देखता था डेली न्यूज़पेपर, जिसमें उनके क्विज भी रहता है डेली का, तो वो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से निकाल सकते हो. फिर आधे घंटे ऐसी IAS बाबा के साइट से देखता था एंड 15 मिनट का यूट्यूब का वीडियो देख लेता था. करीब 1 से 1.5 घंटे में मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कवर हो जाता था. एंड मंथ के एंड में विजन IAS की एक मैगजीन आती है, वो आप पढ़ सकते हो, बिकॉज
उसमें वो समराइज करके देते हैं, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। एंड लास्ट में प्रीलिम्स और मेंस से पहले पीटी 365 मेंस 365 आते हैं, वो आप रिवाइज कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। आप डेली बेसिस पे 2 साइट्स को फॉलो करोगे, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करोगे, एंड मंथ के एंड में एक मैगजीन पढ़ोगे, और प्रीलिम्स और मेंस से पहले अगर पीटी 365 मेन 365 पढ़ोगे, तो आपका सेम कंटेंट करीब 3 से 4 बार रिवाइज हो जाता है, तो वो आपके बैक ऑफ माइंड में चला जाता है। मेनली करंट अफेयर पे ज्यादातर लोगों को डाउट होता है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। एंड रिगार्डिंग इसके शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं, मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, बिकॉज जब मुझे पता है कि मंथ के एंड में वो मैगजीन में पढ़ूंगा एंड डेली बेसिस पे भी मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें रिपीट होती थी, तो वो याद ही हो जाती थी। हाउएवर अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे नहीं याद रहता है, तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो भी माइंड मैप के फॉर्मेट में, रेदर देन राइटिंग एवरीथिंग, बिकॉज लास्ट में अगर बहुत ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। मैं एवर नोट पे कुछ स्टैटिक के भी शॉर्ट नोट्स बनाता था, लेकिन उसमें ओनली समरी लिखता था रेदर देन राइटिंग एवरीथिंग। तो मेरे पास स्टैटिक के जैसे शॉर्ट नोट्स की टाइप में पीडीएफ थे लास्ट में। सपोज आप प्रीलिम से 1 महीने पहले आप सारी बुक्स दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स ही पढ़ते हो स्टैटिक के। तो इसीलिए आप एवरनोट पे बना सकते हो या कॉपी में भी लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए, कि जस्ट अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हाँ मैंने स्टैटिक रिवाइज कर लिया है। सेकंड है हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू और राइट वे टू कवर करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दिस। हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली एज आई एम फॉरगेटिंग even after revision, especially history, and how to revise current affair magazines. See, it's a human nature. फर्स्ट रीडिंग में शायद चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड रिवीजन का है वो टेस्ट सीरीज के थ्रू है। rather than reading same content again and again, first you should attempt good test series. अगर उस टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, देन आप उन टॉपिक्स को उठाइए जिनसे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सपोज वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, जो सपोज अमेरिकन रेवोल्यूशन पर कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर आप उस टॉपिक को उठाइए रेदर देन वर्ल्ड हिस्ट्री रीडिंग अगेन एंड अगेन। उससे क्या होगा, जो आपके वीकनेस हैं उन पे ज्यादा फोकस होगा। एक ह्यूमन नेचर होता है, आप अगर एक की नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो जो चीज फर्स्ट टाइम में मिस हुई है वो हर बार मिस होगी, तो आपको अपनी वीकनेस कभी पता ही नहीं चलेंगी। तो अपनी वीकनेस, मेरा स्ट्रेटेजी था, एक बार स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर तो डेली बेसिस पे चलता ही है, देन नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज को ना पढ़ के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करूंगा, टेस्ट सीरीज में जो गलती होंगी देन मैं अपने नोट्स उठाऊंगा। तो रिवीजन शुड बी थ्रू द टेस्ट सीरीज अटेम्प्टिंग। एंड हाउ टू रिवाइज करंट अफेयर मैगजीन्स, मैं तो करंट अफेयर के लिए जैसे बताया डेली बेसिस पे 2 साइट्स, इनसाइट ऑन इंडिया एस बाबा की न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ता था, एंड यूट्यूब चैनल। मंथ के एंड में विजन आईएएस मैगजीन, और लास्ट में पीटी 365 मेन 365। तो वो उसी के थ्रू अपने आप रिवाइज हो जाता है करंट अफेयर। And some argue that one should prioritize pre over mains, while other argue that mains should come first. What do you think? Think is the best approach? I think since day one से mix preparation होनी चाहिए। आप because इनिशियली में आप प्री और मेंस को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रीलिम्स नजदीक होता है तो प्रीलिम्स से अराउंड 3 मंथ पहले आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाएं, देन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप किसी पेड करके आई थिंक ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, उसका आप प्रिंट लें और उसमें टेस्ट लगाने के बाद उसके एनालिसिस कर लें अच्छे से। और मैं तो उसमें भी ये करता था, जैसे अगर मैंने कोई भी टेस्ट लगाया, मैंने उसमें मेरे से सपोज 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो 30 क्वेश्चंस के आंसर्स के जो डिटेल एनालिसिस होता है उनका फोटो ले लेता था मैं। तो अराउंड मैंने करीब ये मान के चलो 50 टेस्ट लिखे प्रीलिम्स के, तो मेरे पास 1500 फोटो हो गए पूरे प्रिपरेशन के। तो उन 1500 फोटोज को मैं कभी भी राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करता रहता था मोबाइल में, सो दैट एटलीस्ट मेरी जो वीकनेस थी वो इम्प्रूव हो गई। अदरवाइज आपको टेस्ट सीरीज का लगाने का कुछ फायदा नहीं निकलेगा, बिकॉज जब तक आपको उसका एनालिसिस नहीं होगा अच्छे से। और एनालिसिस का मीन्स जो क्वेश्चंस गलत हुए उन पे आपको पता होना चाहिए क्या गलती करी है। तो चाहो तो आप उनके शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हो कि मेरे से इस क्वेश्चन में ये गलती हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। मैं वो टाइम सेव करने के लिए सीधा फोटो ले लेता था कैमरे में डिटेल एनालिसिस का, तो उससे मोबाइल में आप कहीं भी बैठे हो तो अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट बार बार पढ़ोगे, तो वो चीज 70 क्वेश्चन जो सही हुए उन पर तो ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं होती है।
नेक्स्ट इज तो मेरा आंसर रहेगा कि मिक्स चलें इनिशियली में, जब प्रीलिम्स नजदीक हो 2-3 महीने पहले, तो देन प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो जाए। उससे पहले आप प्री कम मेंस प्रिपरेशन करें और टेस्ट सीरीज सिंस डे 1 से स्टार्ट कर दें। एट द सेम टाइम ऑप्शनल को साथ साथ कैरी ऑन करें। And how to improve answer writing and other things about answer writing. This is the most important question actually. ये ही है जो I think मैंने जिस चीज के लिए आज सेशन के लिए एग्री किया था, because other than this सारी इन्फो आपको यूट्यूब और कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। मैं बिकॉज आपको जैसे इनिशियली में जब आप सिलेबस कंप्लीट करने लगते हो तो आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो मुझे आंसर राइटिंग जब कंप्लीट करनी चाहिए, जब स्टार्ट करनी चाहिए तब सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कभी भी वो टाइम नहीं आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। इवन सिलेक्शन के बाद भी वो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। तो सिंस डे 1 से आप कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करो। इनिशियली में बहुत गंदा आंसर लिखोगे, आपको खुद को पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन वो डे बाई डे कैसे इंप्रूव होता जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इनिशियली में आप एक एक दो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एक बार विद इन 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो गया, एज इफ यू आर बिगिनर, आई एम कंसीडरिंग इफ यू आर बिगिनर, देन 6 मंथ्स कंप्लीशन, 6 मंथ्स में सिलेबस हो जाने के बाद बेसिक, देन आप एक गुड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बिकॉज उसका आपका आंसर एवेल्यूशन होगा, वो इनपुट आउटपुट बहुत जरूरी है। उसमें अगर आपकी जो जो मिस्टेक्स होती हैं उन पर वर्कआउट करो। या फिर मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रहा था साथ साथ में, तो मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, हम 3 फ्रेंड थे, 4 फ्रेंड थे, चारों फ्रेंड ने एक सेम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, सेम यूपीएससी के एनवायरनमेंट में लिखते थे, विद इन 3 आवर्स में उसको कंप्लीट करते थे। अगर कंप्लीट नहीं भी होता तो 3 आवर में, तो फिर हम आगे लिखते नहीं थे, बिकॉज इन दी एंड आपको 3 आवर्स में लिखना है पेपर को। तो इतना यूज टू हो गए थे कि वो पेपर कभी छूटता नहीं था। अदरवाइज मेंस में जैसे अभी 20 क्वेश्चन आते हैं 2 सेक्शंस में, तो आपकी या तो 18 क्वेश्चन होंगे या 17-19, मोस्ट ऑफ दी 50% लोगों पे वो पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो एटलीस्ट आप टेस्ट सीरीज लगाने से आपकी वो नर्वसनेस खत्म हो जाती है, आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाती है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी बन जाती है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर सकता हूँ। मेंस में मैं 11 to 20 पहले अटेम्प्ट करता था, बिकॉज वो 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन वाइज टाइम फिक्स किया हुआ था कि अगर मैं जैसे टोटल 180 मिनट्स होती हैं आपके पास, तो इसी के 5 मिनट्स में मैं पेपर को 11 to 20 सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें से मैं चूज कर लेता था कि 10 में से 11 to 20 में 7 क्वेश्चन मेरे से अच्छे आते हैं, तो उन 7 क्वेश्चन को पहले करता था। हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट देता था, तो ऐसे 100 मिनट मेरे ये हो गए। 10 क्वेश्चन पर 10 मिनट पर क्वेश्चन, 11 to 20। अब इसमें जनरली क्या होता है, आप सबको 11th क्वेश्चन पहले कर रहे हो, तो इसमें 10 मिनट की जगह आपको 12 मिनट भी लग जाएंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन शायद सही से नहीं आएगा तो 8 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन एवरेज 100 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाते थे। उसके बाद 1 to 10 के जो क्वेश्चन हैं वो 15 मिनट में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। 10 क्वेश्चन आते थे, 75 मिनट में वो कंप्लीट हो जाते थे। 5 मिनट जो थी वो इनिशियली में पेपर को पढ़ने में निकल जाती थी, उससे पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है, पेपर कभी छूटेगा नहीं आपका। और एटलीस्ट अगर आपने 20 टेस्ट लिख लिए तो आप इतना यूज टू हो जाते इस प्रोसेस के ऑटोमेटिक पेन चलता है उसी हिसाब से आपको वॉच पे भी देखना नहीं पड़ता। एंड सबसे हमेशा आप चेक कर रहा है उसके हिसाब से आंसर अलग करना है, वो आप कैसे कर सकते हो। सपोज पेपर 1, 2, 3 का है अगर क्वेश्चन, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन अच्छे से जैसे यूनिवर्सिटी में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी एंड हाउ यू कैन एलिमिनेट इट, यू विल राइट कि दीज आर द रीजन एंड डन। लेकिन यूपीएससी मोड से ज्यादा नहीं लेगा एग्जाम, वहाँ पे स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है। वो उसको ऐसा आइडिया नहीं आता 10 में से 6 दे दिए, 7 दे दिए, रैंडम मार्क्स नहीं देता वो, आपकी स्टेप मार्किंग होगी, देन वो सम होता है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखो अच्छा सा, लाइक इसी में लिख सकते हो आप सब। लेकिन यूपीएससी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेम क्वेश्चन को अगर मैं यूपीएससी के स्टाइल में बोलूँ तो पॉवर्टी इज बस इस सकता है, तो आप में देना है। लाइक आप इसमें कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो कि पुअर पीपल नॉट इवन poverty is just not lack of resources, but even poor people doesn't dream high also.
तो और देन फिर आप तेंदुलकर कमेटी का डाटा दिखा दो टू शो द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन के एज पर तेंदुलकर कमेटी इंडिया हैज 21.9 पॉवर्टी रेट। तो आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया विद बेटर विद सेइंग और कोटेशन, एट द सेम टाइम आपने फैक्ट्स दिखाए विद द कमेटी नेम। उसके बाद आप मेन बॉडी को एड्रेस करो, और मेन बॉडी में भी आप जैसे दो पार्ट हैं, तो सपोज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी है, आप कॉजेस ऑफ पॉवर्टी फ्लो चार्ट की फॉर्म में गोला बना के दिखा दो विद एरो डायग्राम्स। उससे क्या होगा, आपका आंसर दिखने में फैसिनेटिंग लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करी होगी आपने क्राउड से। देन आप अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स दिखा रहे हो तो उसके सॉल्यूशन आगे एड्रेस दिखाओगे, तो दूसरे पार्ट में उसका सॉल्यूशन विद डिफरेंट डायमेंशंस। अगर आप एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी के मेजर्स बता रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस खोलो, ऐसी कॉजेस में भी डिफरेंट डायमेंशन खोलो, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगली, आपकी इंटरनेशनल और फाइनेंशियली या इन्वायरमेंटली या स्पोर्ट्स, मतलब 8 से 10 डायमेंशन उसमें ओपन करो। देन आप एक बेटर कंक्लूजन लिखो विद वे फॉरवर्ड, और इट शुड बी होलिस्टिक। आपकी अप्रोच दिखनी चाहिए कि जो भी ऑफिसर बनने वाला कैंडिडेट है वो पॉजिटिव अप्रोच के चलता है। तो उसमें आप जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि मैं तो इवन संस्कृत के डायलॉग्स यूज कर लेता था आंसर राइटिंग में। जैसे इसी में आप लिख सकते हो, सर्वे वन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Like if everybody there is no lack of resources on the planet, अगर हम उनको effectively और balance wise use करेंगे with the government intervention or policy implementation, तो definitely we can achieve the SDG sustainable development goals। तो आपको अपने आंसर में हर फोर्स करना है एग्जामिनर को कि हर कंपोनेंट पर वो आपको 1 मार्क्स आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दे। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन में कोटेशन पे हाफ मार्क्स देगा, फैक्ट्स पे हाफ देगा, मेन बॉडी में फ्लो चार्ट पे वो 2 नंबर देगा, फिर अगेन सॉल्यूशन पे 2-3 नंबर देगा, देन कंक्लूजन पे 1 नंबर देगा। ऐसे आपके 10 में से 6 या 7 मार्क्स बनेंगे। हर एक क्वेश्चन आंसर पे अगर आप 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लोगे तो आपके एक पेपर में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे क्राउड से। ऐसी पूरे जीएस में 100 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो वो आपको फर्स्ट रैंक से मतलब लास्ट रैंक से फर्स्ट रैंक पे लेता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप एग्जामिनर को फोर्स कर रहे हो मार्क्स देने के लिए। आप खुद अज्यूम करो, एक एग्जामिनर जो 100 कॉपी चेक कर रहा है, सेम आंसर्स पढ़ रहा है, वो इतना बोर हो जाएगा उन आंसरों को पढ़ते पढ़ते। आपको क्राउड से थोड़ा सा अलग लिखना ही है, और वो अलग वही है कि कोटेशंस यूज करना, या फिर इवन बेटर प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए आंसर्स की, फैक्ट्स यूज करना, कमिटीज के नेम यूज करना, आर्टिकल्स मेंशंस करना, एंड कुछ पॉलिसीज को मेंशन करना। अगर कहीं पर प्रॉब्लम दिखा रहे हो तो उसकी सॉल्यूशंस दिखाना, अपनी पॉजिटिव अप्रोच दिखाना, होलिस्टिक कंक्लूजन लिखना। उससे आपका आंसर्स में डिफरेंट कंपोनेंट आ जाते हैं। सेम फॉर एथिक्स। एथिक्स में सबसे स्कोरिंग पेपर होता है, एंड इसमें 2 सेक्शन है। तो टेस्ट जैसे केस स्टडीज में आप कभी भी एक सिंगल अप्रोच फॉलो ना करें, आप एक पैटर्न पे केस स्टडीज का आंसर ना लिखें। जैसे उसमें आई डोंट नो कितने लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या कोई इंटरव्यू तक पहुंचा है, आई डोंट नो, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि सब लोगों ने टेस्ट सीरीज शायद स्टार्ट कर दी होगी, बिकॉज ये बहुत मच नीडेड है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस ही है। इवन कोई मेरे से एक लाइन में पूछे कि क्या डिफरेंट करना चाहिए टॉपर बनने के लिए या सेलेक्ट होने के लिए, तो मैं सिंपल से बोलूंगा अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज एज मच एज यू कैन। जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे इतना, अगर आप मेंस के 50 टेस्ट लिख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ स्टैम्प पे लिख सकता हूँ आपके सिलेक्शन की गारंटी। एंड नो डाउट कुछ लोग बिना टेस्ट सीरीज के भी सेलेक्ट हुए होंगे, बट वो अलग एक्सेप्शंस हैं। उनकी शायद राइटिंग स्किल्स कॉलेज लेवल में या कहीं पर इम्प्रूव हो गई होंगी। तो उसमें आप जैसे केस स्टडीज में आप फैक्ट्स हो गए, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए, एथिकल इश्यूज हो गए, ये आंसर्स में पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आप ये दिखा रहे हो, ये लिख रहे हो, और ये आपके 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, क्या इवन 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे एग्जाम में। जैसे उसमें 6 केस स्टडी आती हैं, आपको 6 केस स्टडी में ये तीनों कंपोनेंट लिखने के लिए हर केस स्टडी में 5 मिनट ज्यादा लगते हैं। एक स्टडी में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 15 मिनट में एक केस स्टडी आपको कंप्लीट करनी है। तो जिसमें एथिकल इश्यू, स्टेक होल्डर्स एंड फैक्ट्स, ये तीनों आप दिखा रहे हो एग्जामिनर को कि हाँ मुझे केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई है। उसके बाद आप उसमें क्वेश्चंस के डिमांड के हिसाब से आंसर लिखोगे। सपोज लिखा हुआ है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, देन आप ऑप्शंस अवेलेबल दिखाओगे विद मेरिट एंड डीमेरिट इन द टेबल फॉर्मेट, ताकि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको नेगेटिव और पॉजिटिव आपको पता है डिसीजन लेने से पहले। सो आप एग्जामिनर को दिखा रहे हो कि यू आर प्रैक्टिकल ऑफिसर, यू नो कि अगर मैं डिसीजन लूंगा तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सोसाइटी के। देन
आप नीचे बताओगे कि क्या ऑप्शंस आपने चूज किया है और व्हाई। मोस्टली एक केस स्टडीज में एक सिंगल मोस्ट स्टैंड नहीं होता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसमें एक अप्रोच कहीं ना कहीं आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल बताएं उन्हीं का मिक्स बताओगे आप। देन एक होलिस्टिक अगर सॉल्यूशन प्रॉब्लम बताइए तो उसके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी बताओगे, देन वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। ऐसी सेक्शन 1 में एथिक्स में आपको बहुत सारे कोटेशंस यूज करने होंगे, फ्लो चार्ट्स यूज करने होंगे, बिकॉज सेक्शन ए में एथिक्स में ओनली कोटेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो उन पे आप कोटेशंस और ये सब यूज कर सकते हो। तो ये मोस्टली आंसर राइटिंग का था, आप डे 1 से स्टार्ट करें। Some argue, next question is, some argue that you should choose optional based on current trend rather than your own interest, and most of the aspirants believe that one should choose your optional based on trend even if you are not interested in it, and avoid any optional that has a poor outcome even if you were very good in it, your academic complete graduation। मैं इसमें आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। टेक्निकल माइन ऑप्शनल वाज सिविल इंजीनियरिंग, एंड मोस्ट ऑफ दी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सबने यही सजेस्ट किया था कि टेक्निकल से सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है, मत करो। लेकिन अगर आपका, मेरा जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड आईआईटी बीएचयू से बीटेक था, तो मुझे पता है मैंने जब 4 साल अपनी लाइफ की सिविल इंजीनियरिंग को दिए हैं, तो मैं इसको आगे क्यों ना पढूं। तो मेरे लास्ट 20 इयर्स के पेपर का आपने अच्छे से किया हुआ है, आपको पता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है और आपको उनके आंसर्स आते हैं, आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप चूज करो। आई थिंक आप लास्ट 10 इयर्स का भी रिकॉर्ड उठाओगे तो हर ऑप्शनल सब्जेक्ट से टॉपर रहे हैं। हाँ, हाउएवर कुछ ऑप्शनल्स हैं ऐसे जो कि बड़े स्कोरिंग्स हैं, बट आपको अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है देन आप उन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आपको उसी को चूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने किया अपने सिलेबस में। हाउएवर आपको नहीं है तो देन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिलेबस कम है, ह्यूमैनिटीज के हैं, उनको आप उठा सकते हो। हाउएवर उनमें भी मैं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, 250 मार्क्स तक लाना बहुत ईजी है। 250 के बाद उसमें भी आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज आप नए सिरे से स्टार्ट करोगे, टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, अदरवाइज 240 250 पे रह जाओगे और उसमें आप जस्ट इंटरव्यू कॉल आता है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन नहीं होता उसमें। एंड जिन लोगों के प्रीलिम्स नहीं निकल रहे होंगे उन्हें लग रहा है प्री निकल जाए, एक बार प्री निकल जाता है देन फिर मेंस का इशू आता है, और एक बार मेंस होने के बाद आता है कि इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाए, रैंक आ जाए, देन मतलब आईएएस मिल जाए। तो ये थोड़ा सा बेटर है आप हमेशा से बीइंग ए टॉपर की तरह प्रिपरेशन करो रेदर देन गेटिंग ओनली सिंगल स्टेज। तो मेरा आंसर इसमें यही रहेगा, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल चूज करें रेदर देन फॉलोइंग सम वेट चार्ट। आपको अगर आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अच्छी है तो आप उन्हीं को ऑप्शनल कैरी करें। In which year do we have to begin coaching as we also require full year of self preparation without interruption? आज के ट्रेंड के हिसाब से मैं देखूं तो मेरा आंसर तो ये होगा, कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज कोविड के टाइम में आई थिंक और इवन बिफोर दैट ऑल्सो लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियो शायद टेलीग्राम पे या कहीं डाले हुए हैं हर कोचिंग के, तो आप उन रिकॉर्डेड वीडियोज को ही सुन सकते हैं अपने घर पे रेदर देन ज्वाइनिंग सम टेस्ट सीरीज और पेइंग लैक्स ऑफ फीस। आप वही रिकॉर्डेड वीडियो आप वहां जाके सुनोगे उतने लाख 2 लाख रुपए में, आप वही रूम पे सुन लो। यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड सिंसियर, एंड ये सेल्फ स्टडी से इजीली निकाला जा सकता है। बिकॉज उन वीडियोज को सुन लो, या सपोज किसी कोचिंग की वीडियो नहीं भी है रिकॉर्डेड, तो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के जैसे मुन्नाल पे पड़े हुए हैं, मुन्नाल एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अच्छे ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के अच्छे वीडियोज हैं, एंड लिटरली पॉलिटी एंड जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज भी जाऊँ तो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स वहाँ पे पड़े हुए हैं अच्छे से वीडियो। एंड पॉलिटिक के लिए कोई कोचिंग की जरूरत है नहीं, लक्ष्मीकांत बुक उठाओ और कवर टू कवर पढ़ लो, अच्छा बुक है वो। एंड एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुकलेट काफी सही से है। हिस्ट्री उसके बाद आपकी हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ओनली स्पेक्ट्रम पढ़ो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं उसमें। उसके बाद मिड एंशिएंट के लिए आर्ट एंड कल्चर पोर्शन के लिए नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ लो, और जो डायनेस्टी वाइज लिटरेचर्स और उनमें जो डेवलपमेंट हुए हैं वो किंगडम वाइज है, वो आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की बुक पढ़ लो। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें मुश्किल से 15 से 20 टॉपिक हैं, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, व्हाट वर द इफेक्ट, एंड इस टाइप से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो किसी भी कोचिंग से उठा के, वो सफिशिएंट है। अदर देन दैट एथिक्स है, एथिक्स का मैंने बता दिया, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा बेटर कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दिस इज द ओनली सीक्रेट। तो आई वुड तो सजेस्ट कोचिंग की ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं। हाउएवर इफ यू वांट टू ज्वाइन तो काफी सारी कोचिंग्स हैं, मतलब इफ यू हैव मनी देन यू कैन वेस्ट योर मनी।
एंड हाँ, एक जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं उनको ऐसा लगता है कि समथिंग इज लैकिंग इन माय प्रिपरेशन। आई थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, दैट इज जस्ट मेंटल स्टेट। ये लाइक एक प्री कंसीव नोशन से बना रखे हैं कि कोचिंग की जरूरत है। लेकिन मैं अपना केस बताऊं तो मैंने मतलब जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, ऑप्शनल के लिए ली थी। ऑप्शनल के लिए आई थिंक आप ले सकते हो अगर आपकी उस पर पकड़ नहीं है तो। जो पैसा लगाना है वो टेस्ट सीरीज पे लगाओ, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और जीएस मेंस की टेस्ट सीरीज। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में मिल जाएगी आपको। देन हाँ, अगर इसमें पूछ रहे हैं डू वी हैव टू बिगिन कोचिंग, आप कोचिंग ना ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी, आप जैसे बीटेक कर रहे हो तो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स में भी हो कॉलेज में तो आप नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप चीजें स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन वॉच लाइक गुड डॉक्यूमेंट्रीज, या फिर जो अच्छी बायोग्राफी मूवीज हैं, या फिर जैसे राज्यसभा टीवी का कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का सीरीज है, या इस टाइप की चीजें जो आपको सिविल सर्विस में इंटरेस्ट जगाएं। या फिर किसी भी चीज को लाइक सोचने का तरीका बदलो शुरू से। जैसे आप, मैं सपोज एजुकेशन पे सोच रहे हो तो आप एजुकेशन पे सोचो कि व्हाट आर द कॉजेस जिसकी वजह से इंडिया में लिटरेसी कम है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड कितनी लिटरेसी रेट है, एंड आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो। इस टाइप पे अपने आप से सोचो तो अपने आप जब आंसर्स नहीं मिलेंगे तो आप गूगल करोगे या इवन एडिटोरियल्स एनालिसिस में जाओगे तो वहां पे ऑटोमेटिक सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब गिनती के 300 से 400 टॉपिक होंगे पूरे यूपीएससी में जिन पे अगर आपने थॉरली सोच लिया तो आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो जीएस में स्पेशली। जैसे फॉर हेल्थ है तो हेल्थ में आप सोचो कि कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स इंडिया में हैं, डब्ल्यूएचओ ने कितने रिकमेंड किए हुए हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं हेल्थ इंफ्रा को लेके, इंडिया कहाँ लैग कर रहा है हेल्थ में, एंड कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इन चीजों पे सोच लिया ना तो हेल्थ पे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यू वुड बी एबल टू राइट वेदर इट्स एसए और जीएस। तो थोड़ा सा सोचने का तरीका ब्रॉड करो। देन नेक्स्ट शुड बी स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन, या सिंस डे वन। आपके इनिशियली में सिलेबस नहीं हुआ तो जितना पढ़ा हुआ है उसका उसी से लास्ट ईयर के पेपर्स का, जैसे स्टैटिक है सपोज हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा लो या 5 ईयर्स को उठा लो, उसमें आप स्टैटिक क्वेश्चंस तो चेंज होने से रहे, वो कहीं ना कहीं आपके, तो उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन जिन टॉपिकों के कवर हो गए उनके आंसर लिखना स्टार्ट करो। और जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो देन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अच्छी पेड। देन डू एवरी सब्जेक्ट ऑफ जीएस नीड्स इक्वल टाइम एंड हाउ टू डील विद फियर ऑफ सीसैट। या इक्वल टाइम लाइक इट्स अप टू यू। मैं जैसे कुछ लोग ऐसा होता है कि पता है कि जीएस स्कोरिंग है तो जीएस के 5-10 टेस्ट लगा लिए, वो एथिक्स के 5 टेस्ट अलग से लगा लिए बिकॉज उसमें काफी लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। या फिर जीएस मैं तो सबको इक्वली टाइम देता था बिकॉज नोबडी नोज। आपको कभी कभार लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है लेकिन मार्क्स नहीं आते तो देन आपको ब्लंडर हो जाता है। तो इट्स गुड के आप सबको इक्वल वेटेज दो। हाँ, जिन सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है उन पर ज्यादा फोकस रखो। जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो ऑब्वियसली आपको मॉडर्न इंडिया पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एंशियंट पे, फिर मिडिवल और मे बी वर्ल्ड पे एक एक क्वेश्चन आता है, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम। तो आपको लास्ट ईयर के पेपर्स एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है। जैसे अब इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करनी है आपको, मेंस में इन्वायरमेंट से ओनली करंट अफेयर ओरिएंटेड आता है। तो विजन का जो मंथली मैगजीन है उसमें सब्जेक्ट वाइज सेक्शन बना रखे हैं इन्होंने। इन्वायरमेंट का वहां पे अच्छा सेक्शन है तो वो आप वहां से कवर कर सकते हो। आई तो रियली लाइक जो विजन का मंथली मैगजीन आता है और इनका पीटी 365 मेन 365 जो रहता है। हाउ टू डील विद फियर ऑफ सीसेट, स्पेशली आई वाज फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड तो मैंने तो सीसेट पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं, बट फिर भी आप लोगों को 5 से 10 टेस्ट सीसेट के लगा लेने चाहिए। अगर आपका मार्क्स 100 से कम आ रहा है तो फिर एक बार टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो। अगर 100 से प्लस आ रहा है तो 5 टेस्ट लगा लो, वो बहुत है। उससे क्या होगा, आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। सीसेट में स्ट्रेटेजी ही मैटर करती है अटेम्प्टिंग की, आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। 80 क्वेश्चन होते हैं, समटाइम जिनके मार्क्स कम आते हैं उनके साथ यही होता है, पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता सीसेट का सही से। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। मैं सबसे पहले जो रीजनिंग और एफटी के क्वेश्चन थे 40 उनको करता था, और मेरी हमेशा प्रीलिम्स की अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। उसमें मैं 2 वे में करता था। सबसे पहले क्वेश्चंस अगर मेरे से बिल्कुल नहीं आता था तो मैं उस पर क्रॉस लगा देता था, उसको मुझे सेकंड राउंड में करना ही नहीं है। एंड कुछ जो पूरे आते थे उनको मैं टिक कर देता था, एंड जो मेरे को पता है कि आते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग उन पे मैं गोला लगा देता था।
तो ये मेरा प्रोसेस 1.5 घंटे में हो जाता था एक रन। सिंगल रन जो आधे घंटे का होता था वो ओनली उन्हीं क्वेश्चंस को देखता था जो मैंने गोला लगाए हैं, बिकॉज उससे क्या होता है मेरा पूरा पेपर मैं देख चुका होता था, कभी भी ये नहीं आता था कि बहुत सिली क्वेश्चंस मेरे से छूट गया बिकॉज लैक ऑफ टाइम की वजह से। तो समटाइम कुछ लोगों के पास होता है कि 5 क्वेश्चन छूट गए जो कि आते थे, अब 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आप 2 रन में करो और उसकी प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज में, तो ऑटोमेटिक वहां पे आपको हड़बड़ नहीं होगी। तो जैसे अगर मुझे लगा फर्स्ट रन में मेरे से 50 क्वेश्चन ऐसे हो गए कि बिल्कुल ही राइट है, आई एम कॉन्फिडेंट, और 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि जिनमें एक गोला लगाया है, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्रॉस है, तो मुझे पता है मेरे 100 मार्क्स तो आ रहे हैं। अब मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी सेलेक्ट हूँ, तो फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम्स ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो मैं हमेशा प्रीलिम्स का मेरा टारगेट फॉरेस्ट सर्विस रहता था रेदर देन सीएसई। उससे होता क्या है, आपका जब टारगेट ही फॉरेस्ट सर्विस है तो सीएसई का प्रीलिम्स तो निकलता ही है। मैं कभी मतलब सीएसई प्रीलिम्स के लिए कभी टेंशन ही नहीं आई मेरे को। तो आप प्रीलिम्स में आजकल बहुत डाइसी है, तो प्रीलिम्स को हल्के में ना लें, बिकॉज प्रीलिम्स में नहीं होता है तो देन बड़ा डिमोटिवेटिंग भी होता है, और वो फिर पूरा साल ही ऐसे ही जाता है आपका। तो उसमें आप 1-2 रन में करें, और उसमें अगर आपको रिस्क सेकंड राउंड में रिस्क इतनी ही लें, आपकी फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सही हुए हैं। सिमिलरली फॉर सी सेट में आप 40 क्वेश्चन में सी सेट के रीजनिंग वाले पहले वो करता था जो मैथ वाले एफटी वाले होते हैं, बिकॉज उनमें अगर आपका सही है तो मार्क्स आते हैं, उसमें इंग्लिश की तरह नहीं है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो 40 में से सपोज 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुरंत आते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने गोला लगा दिए, वो मेरे को आते थे बट शायद टाइम कंज्यूम करेंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया वो सेकंड राउंड के लिए। फिर फर्स्ट राउंड में ही इंग्लिश ले लो। इंग्लिश में आपको 40 में से जल्दी जल्दी कवर करना है तो वो 1.5 घंटे में हो जाता है। देन आधे घंटे का अगर सेकंड राउंड लोगे तो उसमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो कि आपने छोड़े, उससे का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और सी सेट में लेट मी टेल यू, अगर आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया ना, तो 100+ आ ही जाते हैं उसमें सबके। तो सी सेट में अगर जिनका ऐसे लगता है कि 100 से कम आते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी सेट के टेस्ट सीरीज के पैटर्न पे ही एग्जाम लास्ट में आते हैं, उसमें बस डिजिट्स ऊपर नीचे होते हैं और कोई आपको पैटर्न फिक्स होता है। एंड नॉर्मल जिनके मार्क्स अच्छे आ रखे हैं सी सेट में, वो 2-3 टेस्ट लगा के चले जाएं ताकि उनकी स्ट्रेटेजी फिक्स हो जाए कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि पेपर छूटे ना। Will it be good to start prelims and mains preparation simultaneously or we should follow different strategy? इसमें ऑलरेडी आई हैव रिप्लाइड के साथ में ही करना चाहिए। ये जो मेरे पास 10 क्वेश्चन थे विच आई हैव ऑलरेडी एड्रेस। अभी अगर कोई नए क्वेश्चंस हैं तो गो अहेड। First of all, thank you so much, sir, for this informative confab with us. It feels so pleasure to know more about the right strategies and techniques that you have given to us. And after having you, we are definitely going to be very resilient. Yes, sir. We have collected some more questions from the students regarding the preparation and the topic. So if you allow us, can you proceed further? Yeah, sure. Okay, sir. So, so moving toward the first question. The first question is how to prepare ethics paper, mainly case study section. Okay, मैंने जैसे आई थिंक मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि उसमें जो मैं आंसर्स को 8 जैसे 6 केस स्टडी होती हैं, तो 6 की 6 स्टडीज की अप्रोच सेम ना रखो ताकि आपका आंसर मोनोटोनस ना बने, बिकॉज मार्केट में एथिक्स की आंसर राइटिंग, केस स्टडीज आंसर राइटिंग का कोई पैटर्न है ही नहीं, किसी कोचिंग ने नहीं दिया है। तो हर स्टूडेंट अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, उसमें किसी के मार्क्स आते हैं किसी के नहीं। तो मैंने जो फॉलो किया वो मैं बताता हूँ। जैसे 3 केस स्टडीज में मैं ये फॉलो अप्रोच करता था, जैसे फैक्ट्स लिखे पॉइंट फॉर्मेट में, उसके बाद स्टेक होल्डर्स क्या क्या इन्वॉल्व है, फिर एथिकल इशू क्या इन्वॉल्व है, 3 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, सपोज उसमें पूछ रहा है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, तो मैं ऑप्शंस अवेलेबल देता था, मैक्स 3 ऑप्शन अवेलेबल देता था विद मेरिट एंड डीमेरिट। उसके बाद व्हाट ऑप्शंस आई विल चूज, मेरा डिसीजन क्या होगा, वो मैं 3 ऑप्शंस दिए हैं, उनका एक कॉम्बो टाइप भी होता था। देन उसके अगर कुछ केस स्टडी ऐसी होती है जिनमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन आप ऑप्शंस अवेलेबल और सॉल्यूशन में दे देते हो, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की भी जरूरत है। फॉर एग्जांपल सपोज किसी सॉइल कंटामिनेशन है, सॉइल पोल्यूशन का इशू आ गया, किसी कोई केमिकल इंडस्ट्री है जो उस पर केस स्टडी है सॉइल पोल्यूशन को लेके, तो आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे दोगे कि इंडस्ट्री में बंद कर दो या पॉल्यूटेंट ऑब्जेक्ट लगा दो, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी जरूरी है, तो वो केस स्टडी में दिखाओ। एट द सेम टाइम फिर वे फॉरवर्ड
एंड कंक्लूजन, ये 8 पॉइंट रहते थे। अगर अब उसमें दूसरी केस स्टडीज में क्या कर सकते हो आप, फैक्ट्स में पॉइंट फॉर्मेट की बजाय सीधा पैरा फॉर्मेट में लिख सकते हो 3 लाइन में। आपको बहुत बड़ी फैक्ट नहीं लिखना, बिकॉज केस स्टडी ऑलरेडी देयर, आप बस इतना दिखा रहे हो कि एग्जामिनर को हाँ मुझे केस स्टडी समझ में आ गई, इसलिए बस बहुत 2 लाइन में 3 लाइन में फैक्ट्स लिख दो, देन मोस्ट ऑफ द पैटर्न टॉपिक विल बी सेम। Okay, sir, thank इसमें you. अगर आप इस टाइप से जैसे 8 टॉपिक में लिखोगे ना, तो क्या होगा, वो हर पॉइंट पे आपको मार्क्स देगा, तो इजिली 15 में से 10 मार्क्स आपके इजिली आ जाएंगे। 10 से 12 मार्क्स हर केस स्टडी में लोगे तो आप 60 से 70 नंबर तो आपके केस स्टडी में ही हो गए, तो इजिली 100+ हो जाता है एथिक्स में। मेरे जो मार्क्स थे 2018 के एग्जाम में, पेपर 1 में 106 थे, पेपर 2 में 113 थे, पेपर 3 में 107 थे, पेपर 4 में 113 थे, तो टोटल 439 थे मेरे। एंड मेरे ईयर में हाईएस्ट गया था 468, तो आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स इन जनरल। में हमेशा से नंबर अच्छे थे, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के चलते ही थे। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे इतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो है। Okay, sir, thank you. The second question is, what is the right approach to cover geography, biodiversity, internal security, and art and culture? ओके, ज्योग्राफी के लिए जैसे इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी उसी से पढ़ोगे, लेकिन उसमें सारे टॉपिक्स कवर नहीं है, तो उसके साथ साथ जीसी लियोंग की बुक कवर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स शायद फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जीसी लियोंग की बुक में है। तो और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जीसी लियोंग में नहीं है, वो एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओनली वही क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं जहां से कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं या जो न्यूज में रही है लोकेशंस, तो वो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोकेशंस वाइज रहते हैं मोस्टली। एंड इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी कर सकते हो या माजिद हुसैन की बुक से जा सकते हो। ज्योग्राफी के लिए फॉलो करना है तो मुन्ना अली इज द बेस्ट, उन्होंने कवरेज को। एंड अगेन सेकंड आर्ट कल्चर में आप जैसे ऑलरेडी टोल्ड, नितिन सिंघानिया की बुक है जो आर्ट कल्चर पोर्शन को काफी होती है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनिशियल कुछ चैप्टर्स काफी सही है उसमें। देन तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें डायनेस्टी और एंशिएंट तो इतना ही क्या था। यूनिवर्सिटी वाला मोस्टली स्टैटिक तो कुछ पोर्शन होता नहीं है, करंट अफेयर ओरिएंटेड ही है, तो आप जो मंथली डिवाइड किया होता है तो उससे पढ़ सकते हो लास्ट में पीटी। नेक्स्ट। Okay, sir, thank you. And the third question, and I think that most of us were going to suffer from this. What to do when mental tiredness and boredom strikes? ओके, हाइज एंड लोज आर द बेसिक थिंग, वो सबकी प्रिपरेशन में आते हैं, बहुत डिमोटिवेशंस भी आएंगे। एंड स्पेशली जब टेस्ट सीरीज लिखोगे और कम मार्क्स आएंगे देन बड़ा डिमोटिवेशन होता है। बट ऑलवेज थिंक टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हो कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज चेक करने वाले वो लोग हैं जो जनरली क्वालिफाइड नहीं है, दे जस्ट अपीयर इन द इंटरव्यू और वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देते हैं और उनको एवेल्युएट करते हैं। तो उनको यूपीएससी में कोई किसी को नहीं बता सकता क्या सही है क्या गलत है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जो मार्क्स थे जीएस में वो मेरी टेस्ट सीरीज से ज्यादा आए थे हमेशा, टेस्ट सीरीज में इतने वो कभी देते भी नहीं थे। तो आप हमेशा अपनी मिस्टेक से सीखो rather देन उस पर ये करना कि मेरे मार्क्स नहीं आए। जो गलती हुई है उनको एज ए मिस्टेक लो और उनसे सीखो देन, ताकि फाइनल एग्जाम में ना हो। हाउएवर हमेशा जब भी लो फील हो तो एक पर्सनल मोटिवेशन फैक्टर्स लो आप अपनी लाइफ के, किस वजह से सर्विस में आना चाह रहे हो। एंड मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पर्सनली हर किसी को मोटिवेट करती हैं, कुछ जैसे लवासना की वीडियो देख लिए एंड या फिर आपको लगता है कि इस सर्विस में आके मैं अपनी फैमिली की लाइफ या खुद की लाइफ या इवन सोशल प्रेस्टीज और मे बी कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, कुछ भी इस टाइप के पॉइंट्स जो। अदरवाइज अगर हाई एंड लोज आना लाजमी है, सबकी प्रिपरेशन फेज में आते हैं, अगर नहीं आते हैं देन गलत है। नहीं आ रहे हैं इट मींस यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सिंसियरली
अगर आ रहे हैं तो इवन अच्छी बात है, बट उनको मैनेज कैसे करना है वो आपकी टैक्टिक होनी चाहिए। Thank you so much, sir, for answering all the questions. I hope that everything is clear now. Sir, we are going to conclude this session. So if you want to add something, you can do that now. ओके मैं इनिशियली आपको आई डोंट नो मेरी ऑडियंस मुझे नहीं पता किस टाइप की है, बट अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ बिगनर है तो बिगनर्स के लिए यही बोलूंगा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पे एक साथ फोकस रखो और टेस्ट सीरीज डे 1 से स्टार्ट कर दो। आप इनिशियली 1 या 2 क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो। वो 1 और 2 क्वेश्चन या तो लास्ट ईयर के पेपर से ले सकते हो स्टैटिक के, करंट अफेयर के लिए इनसाइट ऑन इंडिया और आईएएस बाबा के दोनों में मेंस के क्वेश्चन भी ये डेली पुटअप करते हैं करंट अफेयर ओरिएंटेड, तो वहां से 1-1 2-2 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। 1 क्वेश्चन स्टैटिक का, 1 करंट अफेयर का। एंड जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो अच्छी सी और उसको लिखो, उसके आप आंसर एवेल्यूट कराओ। एंड अगर आप ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई कर चुके हो, इंटरव्यू पे नहीं निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शनल में या फिर जीएस के स्कोर में इशू होगा, तो वो अगेन टेस्ट सीरीज से इम्प्रूव होगा। या अगर जैसे आपको इंटरव्यू पे बहुत डे 1 से ज्यादा फोकस ना करें, इंटरव्यू हमेशा मेंस के बाद सफिशिएंट टाइम मिल जाता है तब प्रिपरेशन कर लें। स्पेशली जो आपकी स्ट्रेंथ है, वेदर इट्स ऑप्शनल या जीएस के कोई पेपर, उन पे वर्क करें। और मे बी कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं, जैसे किसी पेपर में ऐसे में ऐसे उठ के चले जाएंगे, तो ऐसे के आप एटलीस्ट लिख के जाएं। बिकॉज आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाके लिखोगे तो इट्स ऑब्वियस के कुछ ना कुछ गलती आपसे होके ही आनी है, वो सबसे गलती होती है। अगर मैं भी डे 1 में सीधा वहीं जाके लिखूंगा तो मेरे से भी गलती होगी। तो टेस्ट सीरीज लिखें। मैं तो अपने ही बताऊं तो प्रीलिम्स में मिनिमम 50 टेस्ट, मेंस में मिनिमम 20 टेस्ट, ऑप्शनल में मिनिमम 10 टेस्ट, ये आपको लिख के ही जाने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बी टॉपर ऑफ दिस एग्जाम। एंड लिटरली बीइंग अ टॉपर ऑफ एग्जाम इज वेरी इजी। जब रिजल्ट आता है तब आप पीडीएफ में आपका नाम आता है तब आपको लगता है कि मैं टॉप भी कर सकता था। इनिशियली में हम अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज लोगों ने इतना हाइप कर दिया इस एग्जाम को कि उन्हें लगता है कि लाइक आईएएस इज मोर लार्जर देन लाइफ और समथिंग लाइक दैट। वो आई थिंक सर्विस में आने के बाद शायद ऐसा होता है, लेकिन सर्विस से पहले तो जस्ट एन एग्जाम जिसमें 9 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स होता है, इंटरव्यू होता है, दैट्स इट। तो उसको टेक इट इन दैट, बस इतना ही है। देन दैट तो दैट lot of things वो चलता रहेगा, unending things है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो thank you so much and okay, thank you for inviting me. Thank you so much, sir, for joining us. Now I would like to request our committee teacher, Ms. Sonal, to conclude this session and to give vote of thanks. थैंक यू आशी। हितेश कुमार मीना जी, दिशा संगठन के तमाम छात्रों की ओर से आपको बहुत बहुत आभार कि आपने इतना वक्त निकाला और इतनी सूक्ष्मता के साथ छात्रों के तमाम सवालों का जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि शिवाजी कॉलेज के जो छात्र हैं, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान की एक मुश्किल तरीन इम्तिहानों में से एक है, उसमें ये जरूर इनका लाभ उठाएंगे और इनको बहुत फायदा होगा और ये बहुत शुक्रगुजार भी होंगे आपके इस वेबिनार के लिए। तो एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया छात्र एवं शिक्षकों की तरफ से। सबसे पहले इस इवेंट को कामयाब बनाने के पीछे कुछ लोग हैं जिनका मुझे शुक्रिया अदा करना है। उसमें सबसे पहला नाम आता है शिवाजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव का, जिनके प्रश्रय में दिशा के छात्र और शिक्षक सलाहकार काम करते हैं ताकि शिवाजी कॉलेज में से 1 या 2 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को सफलतापूर्वक नहीं निकाले, बल्कि कई छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बने और देश के विकास में योगदान दें। हमारे छात्रों में कई काबिलियत है, बहुत इतने कामयाब हैं, आपको इस वेबिनार की स्मूथ रनिंग से पता चला होगा। It was all entirely the effort of the students team of Disha Sangathan. So my next vote of thanks goes to Professor Darshan Pandey, who is the convener of Disha Society, and under whose stewardship the students actually try to identify the speakers and get in touch with them and invite them. And most importantly, they ensure to identify those very
critical questions, which at this very young age, when they are just dreaming and finding a goal for their lives, they are able to articulate those questions to you, and you very kindly answered each one of them with patience. I would also like to thank the entire technical team for making this event a very smooth one. Finally, last but not the least, जो छात्र हैं, जो इतने वंडरफुल ऑडियंस के रूप में इतने इंटरैक्टिव होकर आपसे थ्रू आउट दिस सेशन जुड़े हुए रहे हैं। शुरुआत के टेक्निकल ग्लिचेस के लिए हम माफी चाहेंगे, बट एज यू नो देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड right now was a moment where I was switching from offline to online mode. This is my first webinar ever since the college reopened. हमें उम्मीद है हितेश मीना जी, किसी दिन हम आपसे फेस टू फेस रूबरू होंगे और हमारे छात्र आपसे साझा कर सकेंगे अपने सवाल इन पर्सन शिवाजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में। उम्मीद है आप हमारी इनविटेशन को स्वीकार करेंगे। Most welcome from my side. Definitely, Last you are but always not most the welcome. least, the entire student team, Urvashi Gupta, who is leading the team. So young ladies and gentlemen, wish you all the very best in your endeavors, and I'm sure you will take a lot away from this webinar. हितेश मीना जी, एक बार फिर से शिवाजी कॉलेज के तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you so much, and you are always most welcome. And आज मैंने most of the problems questions के हिसाब से चला था, that's why मैंने only मेरी preparation जर्नी बताई थी। अगर जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की बात थी, अगर आप सिलेक्शन के बाद इस सर्विस की बात करें तो उसका एक अलग ही फेज है। आप आफ्टर गेटिंग इनटू सर्विस आपकी एक डिफरेंट लाइफ स्टार्ट होती है। उस पर मे भी शायद हम कभी दोबारा कोई सेशन रखेंगे, तब वी विल डिस्कस ओनली दैट पार्ट। तो वो लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी आई थिंक यूट्यूब पे काफी लोग डालते हैं और वर्किंग देखी भी होगी IAS की। वो आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है। इस सर्विस का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इतना डाइवर्सिफाई जॉब है कि आपको डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी लाइफ मोनोटोनस नहीं होती। आप थ्रू आउट द योर कैरियर सर्विस, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपकी मेंटली ग्रोथ होती रहती है। एंड आपका जो जॉब है वो ऑथोरिटी के चलते या फाइनेंशियल पावर भी होती है, उसके चलते जो भी काम करते हो उसका इम्पैक्ट आप सोसाइटी के एंड पॉइंट तक देख सकते हो। इट्स नॉट लाइक आपने कुछ ऑर्डर चाहते हो या फिर नेशन के लिए एनीथिंग, तो वो आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखता है। वो इसीलिए हमेशा ऑल इंडिया सर्विस, वेदर इट्स IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और नेवी ग्रुप सर्विस, तो ये थोड़ा सा सिविल सर्विस की एग्जाम्स में पोस्टों में ये रहता है। तो इसलिए जिनको भी डिमोटिवेशन होता है अगर थ्रू आउट द प्रिपरेशन किसी स्टेज पे, तो इन चीजों को सोच सकते हो कि सिलेक्शन के बाद लाइफ ड्रास्टिकली बहुत चेंज हो जाती है। एंड इन माय केस तो लाइक मेरी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक्स ही डिस्कशन रहते हैं, बिकॉज आई एम मैरिड टू माय बैचमेट, शी इज आल्सो एन IAS ऑफिसर। तो आप अगर हस्बैंड वाइफ IAS कपल होते हैं तो देन आपकी एक अलग वर्किंग स्टाइल होती है। आपकी पर्सनल लाइफ की भी डिस्कशन ब्यूरोक्रेसी के होते हैं, तो आप थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ ब्यूरोक्रेसी से ही घिरे रहते हो। तो ऑलवेज मे बी हम कुछ दूसरा सेशन रख लेंगे जिसमें आफ्टर सिलेक्शन इनटू सर्विस क्या चीजें चेंजेस होती हैं और क्या रहता है। जी बिल्कुल। Urvashi and the entire student team, please make a note of this. We must also have a session about life as a civil servant, because it is not just about cracking examination, it's also about how you mold yourself into the huge responsibility that you all have undertaken upon yourselves. And yes, Hitesh ji has given us his informal consent that he will be a part of it. So Hitesh ji, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया for being such a lovely speaker, and शिवाजी कॉलेज की तरफ से आपको होली की अग्रिम शुभकामनाएं। Okay, Should we thank you call so it a much. day, Most Ashi? welcome. Happy Holi. Sorry, ma'am. Should we call it a day now? Yes, ma'am. And thank you for your delightful words. And thank you, sir, so much, sir, again. Attention, everyone. We have provided a feedback form in the chat box, so all are requested to fill that form before leaving the meeting.